Good morning students and welcome to biology class. Today we are going to discuss a new chapter, new lesson, plant water relation. Dear student, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लेसन नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो एक्सेप्ट 6.1, 6.2 एंड 6.3, लुक एट हियर 6.1 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, 6.2 वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन एंड 6.3 दैट इज वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ये तीन टॉपिक्स को छोड़कर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन आर रिड्यूस। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेसन नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 10, 11, 12, 13 ये पूरे टॉपिक्स यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं इस लेसन से। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, बट बिफोर द फर्स्ट टॉपिक आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। लुक एट हियर and try to give the answer of these questions because you are familiar about these questions. First one, which are the various parts of plant body? Plant body के various parts कौन से हैं? तो as you know, root, stem, leaves, flowers, fruits and seeds, these are the main parts of plant body. And what are the functions of various parts of plant body? अब हमको इनके functions बताने हैं। Then the answer is, as you know, roots which help in the absorption of water and minerals from the soil. Stem, it help in the transport of water and minerals which is absorbed from the soil, and it also help the food that is prepared in the leaf, it is also transported through this stem. Leaves, most important plant part are part of the plant body which help to prepare the food, means which help in photosynthesis. Flowers, these are the parts of plant which is the reproductive part or organ of the plant and help in reproduction, and it also help for the attraction of insects or other animals for pollination. And the next one, fruits are provide protection to the seeds, and it also helpful for the dispersal of seeds. And seeds, or the function of seed is it help or it protect to the embryo, and it also help in the seed dispersal. And the next question number 3, which plant tissue are involved in the transport of water and minerals? तीसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि प्लांट के कौन से टिश्यूज है जो एक्चुअल वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं? द आंसर इज जाइलम। जाइलम टिश्यू आर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। गॉट इट स्टूडेंट? Now look at here, आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। You know that we need a water pump to lift water at the top of the building, but how does plant lift the water from the soil up to canopy without any pump? Dear student, जैसे आपको पता है कि हमको अपने बिल्डिंग के टॉप पर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए हमको पंप की ज़रूरत पड़ती है, बट प्लांट कैसे वाटर को लिफ्ट करते हैं
सॉइल से कैनोपी तक एंड विदाउट एनी पंप। तो इसका आंसर हम इस लेसन में, इस टॉपिक में देखेंगे। नाउ लुक एट हियर, प्लांट ऑब्टेन्ड variety of substances like water, minerals, nutrients, food and gases like O2 and CO2 from its surrounding। प्लांट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से, लाइक वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड गैसेस लाइक O2 and CO2 and from its surrounding, and productivity in the plant is mainly affected by the non availability of water। और प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, फूड प्रोडक्शन है, वो मेनली अफेक्ट करता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट, वाटर इज कंसिडर्ड एज elixir of life। What is considered as elixir of life? Water constitute about almost 90 to 95% of most of the plant cell and tissue। वाटर को हम कंसिडर करते हैं elixir of life, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड each plant cell and tissue contain about 90 to 95% of water। Water help the cells to maintain turgidity and shape। It shows following properties due to which it has a biological importance। Water सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और एक शेप देता है, यानी वाटर की वजह से सेल्स का एक पर्टिकुलर शेप रहेगा और उसकी थिकनेस या टर्जिडिटी, जिसको मोटाई बोलेंगे, वो रहेगी। अदरवाइज अगर उसके अंदर से वाटर चला जाता है तो सेल एक्चुअल टर्जिड नहीं रहते हैं। एंड कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है वाटर के, जिसकी वजह से वाटर को एक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक 6.1 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। It is in the liquid form at room temperature and it is the best solvent for most of the solutes। Dear student, these words are familiar for you। ये words आपको पता है, solvent and solutes। नहीं पता तो समझ लें कि actual solvent और solute अगर मिलेंगे तो solution बनेगा। solution के अंदर दो components रहते हैं, एक solute, एक solvent। अगर हम example लें सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो सॉल्ट ये सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड करेंगे तब हमको सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर है, इट इज़ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स, यानी बहुत सारे सॉल्यूट्स इसके अंदर एक्चुअल डिज़ोल्व होते हैं, इसीलिए ये बेस्ट सॉल्वेंट है। एंड इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ नेचुरल pH व्हेन इन प्योर फॉर्म। ये एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनर्ट मीन्स जो दूसरे से जनरली रिएक्ट नहीं करता हो, उसको इनर्ट कहते हैं। इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो न्यूट्रल pH रखता है, जो न्यूट्रल pH मीन्स आपको pH स्केल पता है, 1 to 14 ये pH स्केल होती है। और इस 1 to 14 वाली pH स्केल में आपको पता है कि जो एग्जैक्ट 7 वैल्यू होती है ये न्यूट्रल है, बिलो 7 ये एसिडिक हो जाएगा, अबव 7 ये बेसिक रहेगा। तो वाटर का जो pH है वो न्यूट्रल मीन्स एक्चुअल और अप्रॉक्सीमेटली 7 रहता है। कौन से फॉर्म में? इन प्योर फॉर्म। आपको पता है हमारे ब्लड का जो pH है वो थोड़ा सा बेसिक रहेगा, 7 पॉइंट समथिंग, यानी वो अल्कलाइन होता है। ड्यू टू दिस वाटर इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स। और जैसे कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है डिजॉल्व मिनरल
और फूड मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड इट इज़ द बेस्ट एक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द सेल। और ये एक ऐसा मीडियम है जो डिफरेंट या ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो सेल के अंदर होते हैं उसके लिए एक बेहतरीन एक्वस मीडियम के तौर पर ये काम करता है। एंड इट इज़ इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, यह एक इसेंशियल रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट, वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। 3 डिफरेंट वर्ड्स है, डिफरेंट मीनिंग्स भी है। हर एक सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट मीन्स वो एनर्जी जो किसी सब्सटेंस को उसकी कैलोरीज को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। द कैलोरीज दैट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स अगर कोई सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में हो, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट जो लिक्विड सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करे। एंड द थर्ड वन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स हीट ऑफ फ्यूजन यानी एक्चुअल अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है यानी लिक्विड फॉर्म में आता है, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर के लिए ये तीनों चीज़ें हाई है, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। एंड ड्यू टू दिस इट एक्ट्स एज ए थर्मल बफर, और इसीलिए हम वाटर को थर्मल बफर भी कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो एक्चुअल टेम्परेचर को मेंटेन करे। बफर और थर्मल बफर मीन्स सॉल्यूशन which maintain the temperature also, and these various properties are due to the hydrogen bond between the water molecules। और एक्चुअल ये सब वाटर की जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड है हाइड्रोजन बॉन्ड पर जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हम यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? तो इसका आंसर है इट इज़ अ वीक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है और वीक बॉन्ड है। इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द प्रोटॉन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव of the another molecule, or simply hydrogen bond is a weak bond between 2 molecule. Now second question, what are the meaning of specific heat, heat of vaporization and heat of fusion, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। स्पेसिफिक हीट यानी ऐसी हीट जो किसी सब्सटेंस को 1 डिग्री उसके टेम्परेचर को रेस करने के लिए रिक्वायर्ड है। द अमाउंट ऑफ हीट और कैलोरीज दैट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। अगर हम किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो जितनी हीट उसको लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करती है उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। एंड हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स किसी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना हीट के एब्जॉर्प्शन के बाद। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस? Attractive forces, adhesive force means attractive forces between the molecules of different types, and cohesive forces means the attractive force between the molecules of same type. Look at here, water molecules have good adhesive and cohesive forces of attraction. Water molecule के अंदर
दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं, एडेसिव फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप एंड कोहेसिव फोर्स मीन्स द attractive force between molecules of same type. And due to the high surface tension and high adhesive force and cohesive forces, it can easily rise the capillaries. और इसी रीज़न से एक तो हाई सरफेस टेंशन और हाई एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की वजह से ये कैपिलरीज में इजीली राइज हो जाता है। कैपिलरीज यानी प्लांट में इजीली ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा प्लांट के कैपिलरीज में। एंड इट इज़ देयर फॉर अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट फिजिकल वर्ल्ड विद बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसीलिए ये एक सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल है। ये मीन्स वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड को बायोलॉजिकल प्रोसेस से, यानी डिफरेंट फिजिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट को उनके डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक 6.2 वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? देन द फर्स्ट एंड लास्ट रूट और रूट्स आर द मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन प्लांट। रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट्स ये मेन ऑर्गन है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, plant absorb water in the form of liquid from the soil, and however epiphytic plants like orchid absorb water vapors from the air with the help of epiphytic roots having special tissue called velamen. रूट ये मेन ऑर्गन है वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है यानी जो लैंड पर आते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे या ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स जो है वो टेरेस्ट्रियली होते हैं, लैंड पर ग्रो करते हैं। बट वो प्लांट्स जो इपीफाइटिक प्लांट्स है, मीन्स वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रोथ करते हों, दूसरे प्लांट के ब्रांचेस पर, दैट आर इपीफाइटिक प्लांट्स। एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मीन्स वाटर को लिक्विड फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी लैंड प्लांट्स। एंड इपीफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स जो एक्चुअल दूसरे प्लांट्स पर डेवलप होते हैं, एग्जाम्पल ऑर्किड्स, ये वाटर को वेपर के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, यानी वाटर जो वेपर फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करेंगे स्पेसिफिक रूट्स के थ्रू, जिनको हम इपीफाइटिक रूट्स बोलेंगे। और इस स्पेसिफिक रूट्स के अंदर एक्चुअल स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वाटर से उसके मॉइस्चर को या वेपर्स को एब्जॉर्ब करें। दैट टिश्यू आर कॉल्ड वेलामेन। डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड याद रखना है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है। एंड द टिपिकल रूट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट रीजन्स। जो भी टिपिकल रूट रहेगा उसके 4 डिफरेंट रीजन्स रहेंगे। एंड इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी एक रीजन जिसको हम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन इपीडर्मल सेल्स मीन्स इपीब्लेमा सेल्स फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड हेयर रूट। यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं हेयर रूट्स, ये एक्चुअल जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन रीजन है। 4 डिफरेंट रीजन्स आते हैं रूट्स के, और उनमें जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन रीजन में इपीब्लेमा सेल्स, ये सेल्स या इपीडर्मल सेल्स जो यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहेंगे रूट हेयर्स। आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द रूट टिप शोइंग रूट हेयर्स और रूट हेयर जोन। तो यहाँ पर आपको रूट हेयर्स दिख रहे हैं। दिस इज द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर आपको हेयर रूट्स दिख रहे हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। ये आपको टीएस ऑफ रूट हेयर यहाँ पर शो किया गया है, हैविंग न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस विथ लार्ज वैक्यूल। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आपको याद रखना है क्योंकि हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो इसी पर बेस्ड रहेगा। सेल वॉल, आउटर वॉल
आउटर लेयर, सेल मेम्ब्रेन, इनर लेयर, और यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, एंड न्यूक्लियस एंड अ लार्ज वैक्यूल. Look at here, dear student. The structure of root hair. Root hair is a cytoplasmic extension of epiblema cell. जो epiblema cells है उनका ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन कहलाता है, यानी प्रोलॉन्गेशन. रूट हेयर साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन को कहते हैं, या उसके एक्सटेंड होने से तैयार होता है, प्रोलॉन्ग होने से. ईच रूट हेयर मे बी अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 mm लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और हर जो रूट हेयर है वो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक लॉन्ग होता है, और ये ट्यूब लाइक रहेगा. ओके, जैसे आपने देखा ये स्मॉल ऐसे ट्यूब लाइक होता है. एंड इट इज़ कलरलेस मीन्स हैविंग नो कलर, अनब्रांच्ड मीन्स नो ब्रांच, एंड शॉर्ट लिव्ड मतलब इसकी लाइफ बहुत कम होती है, इफीमेरल, एंड वेरी डेलिकेट, और ये बहुत ही नाजुक या डेलिकेट होता है. इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म. इसके अंदर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसको साइटोप्लाज्म की एक थिन फिल्म उसको क्या करती है, सराउंड करती है, यानी इट इज सराउंडेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म. लार्ज वैक्यूल या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को साइटोप्लाज्म सराउंड करता है, या थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंड करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थिन सेल वॉल, और इसके साथ साथ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, और सेल वॉल भी. एंड विच इज़ द टू लेयर्ड, और इसीलिए ये टू लेयर्ड होता है, यानी रूट हेयर टू लेयर्ड है. आउटर लेयर इज कॉम्पोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. आउटर लेयर, जैसे मैंने आपको बताया सेल वॉल ये आउटर लेयर है उसकी, दैट इज कॉम्पोज्ड ऑफ, यानी वो तैयार होती है पेक्टिन से. और जो इनर लेयर है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे, वो एक्चुअल सेलुलोज की बनी होती है. सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, और जो आउटर लेयर है वो फ्रीली परमिएबल है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेल वॉल, आउटर लेयर फ्रीली परमिएबल है, यानी कोई भी सब्सटेंस को एंट्री देगी या उसको गो आउट करने में हेल्प करेगी, टू गो इन और टू कम इन और टू गो आउट ऑफ द रूट हेयर. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर लेयर है, ये एक्चुअल में सेलेक्टिव है, मीन्स ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को बाहर जाने और उनको अंदर आने के लिए अलाउ करेगी, इजाज़त देगी. गॉट इट स्टूडेंट? Now the third topic 6.3 water available to roots for absorption. अब वो वाटर जो रूट्स के लिए अवेलेबल हो, रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोफेयर मीन्स द माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडिंग द रूट. प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उस माइक्रो इन्वायरमेंट से जो रूट के सराउंड में होता है, जिसको हम राइजोस्फेयर बोलेंगे. एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर्स एज ग्रेविटेशनल मीन्स फ्री वाटर. अब जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल में ये कैसा है, तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल यानी फ्री वाटर, सेकेंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थर्ड कंबाइंड वाटर, एंड फोर्थ कैपिलरी वाटर. वाटर जो प्लांट के रूट के लिए, रूट के सराउंडिंग में जो अवेलेबल होता है, वो वाटर एक्चुअल 4 डिफरेंट टाइप्स का है. ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड एंड कैपिलरी वाटर. नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट वन, वाटर परकुलेट्स डीप ड्यू टू ग्रेविटी इन द सॉइल, इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर. वो वाटर जो एक्चुअल परकुलेट करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है डीपली ग्रेविटी की वजह से सॉइल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर. जैसे डियर स्टूडेंट आपको पता है अभी रेनी सीज़न है,
तो जैसे ही रेन होगा वाटर परकुलेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉइल के थ्रू, और वो वाटर जो एक्चुअल डीपली चला जाता है ग्रेविटी के थ्रू, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर, एंड दिस इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। आउट ऑफ 4 टाइप ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल जो वाटर है ये एक्चुअल प्लांट के लिए नॉट अवेलेबल है फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड फाइन सॉइल पार्टिकल्स imbibe or absorb water and hold it. This is called hygroscopic water. जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स है वो एक्चुअल वाटर को इम्बाइब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यानी फाइन मीन्स बहुत ही बारीक सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर, इम्बाइब वाटर जो इसको होल्ड करते हैं, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब इट। अब ये जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स है जो वाटर को एब्जॉर्ब करके होल्ड करते हैं, इसको भी रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी रूट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एंड वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, oxides of silicon, aluminum, etc. is called combined water. वो वाटर जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में हो, मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, यानी वाटर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर उनके हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स बनाता है, ये वाटर एक्चुअल कंबाइंड वाटर कहलाता है। And it is also not available to plant for absorption. And ये water भी plant के absorption के लिए available नहीं है। And the next one, some amount of water is held in the pores present between the neighboring soil particles due to capillarity. This is called capillary water. वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और सम अमाउंट ऑफ वाटर जो एक्चुअल पार्टिकल्स के सॉइल के जो पोर्स होते हैं नेबरिंग पोर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट हो, जिसको सॉइल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब और होल्ड नहीं करते हों, यानी वो कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। एंड दैट इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी ये ओनली वाटर है जो प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है। हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया है। ग्रेविटेशनल जो डीप सॉइल चला जाएगा ग्रेविटी के अट्रैक्शन की तरफ से, वो भी प्लांट के लिए अनअवेलेबल है। हाइग्रोस्कोपिक वो वाटर जिसको एक्चुअल प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्यों कि इसको एक्चुअल स्मॉल और फाइन सॉइल पार्टिकल इसको एब्जॉर्ब भी करते हैं और होल्ड भी करते हैं, ये भी अनअवेलेबल है। एंड द थर्ड वन कंबाइंड वाटर, ये वाटर एक्चुअल बहुत सारे ऑक्साइड्स फॉर्म करता है सब्सटेंस के साथ मिलकर, जैसे सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स बनाता है। तो ये भी प्लांट्स के लिए नॉट अवेलेबल है। सिर्फ कैपिलरी वाटर, द वाटर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द पोर्स और द वाटर दैट इज हेल्ड इन पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो पोर्स रहेंगे, उन पोर्स के थ्रू जो वाटर होल्ड किया जाएगा, दैट इज कैपिलरी वाटर, एंड दिस इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ पर हमारे तीनों टॉपिक 6.1, 6.2, 6.3 कंप्लीट हो चुके हैं। एंड एज पर आवर रूटीन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके लिए अगेन क्वेश्चन रहेगा जो इसी 3 टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। फर्स्ट वन, द फर्स्ट टॉपिक
आपको नोट लिखना है, राइट नोट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एंड सेकेंड वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, एंड थर्ड दैट इज the water available to the roots for absorption. Got it student? एंड आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है, कुछ क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर just you will see the reduced syllabus. This is the first page, page number 119, and this is 120. and यहाँ से आप देख सकते हैं इतना 121, 122, 123, 24, 25, 126, 127, 128, 129, 130, and दिस इज़ फिनिश 131. यानी यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. यानी इस लेसन पर सिर्फ हमारा ये एक ही लेक्चर रहेगा जो आज हमने उसको कंप्लीट किया है. अगेन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. गॉट इट? And thank you. Have a nice day.